Good evening, everyone. Welcome back to the weekly webinar cum training session of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So, on behalf of Rajlakshmi team, I would like to welcome all the attendees here. Myself, Anagar, representing Rajlakshmi Solutions Private Limited. So, today we are going to talk about banking utility features in Tally Prime. But before moving ahead to the today's topic, let's take a small introduction of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So we are into the multiple segments, that is sales, services, solutions, implementations and developments. We are also into the multiple softwares, that is Tally Prime. Second is SAP Business One. Third is Bitrix 24 and Skill India. So now moving ahead with the today's topic. So before that, we'll just welcome our speakers. So Mr. Tarun, are you here? Yes, ma'am. Okay. Miss Aarti, are you here? Yes, ma'am. Okay. Welcome both of you. So now I request both of you to proceed with your presentation. Okay, ma'am. Thank you. Ma'am, my screen is visible? Yeah, it's visible. Okay, thank you. Hello everyone, myself Aarti Narode, representing on behalf of Rajlakshmi Solutions Private Limited. Here is our Rajlakshmi family. Welcome to all of you. So today's topic is banking utilities in Tally Prime. Reconciliation of bank statement in Tally Prime. Bank reconciliation is a process to match all the transaction and bank balance of an organization with the accounting records of the organization for a particular period. You can perform the reconciliation manually as well as automatically. बैंक रिकंसिलेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन के सभी ट्रांजैक्शन और बैंक बैलेंस के लिए पर्टिकुलर पीरियड के ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के साथ मिलाए जाने के लिए एक प्रोसेस है. कॉन्फ़िगर बैंक लेजर टू परफॉर्म ऑटो रिकंसिलेशन. इफ यू वांट टू ऑटो रिकंसिल your bank statement with the transactions, you can configure your bank ledger account accordingly and set the path for new and import bank statement. You can configure your bank ledger for auto reconciliation only for selected bank. यदि आप ट्रांजैक्शन के साथ आपके बैंक स्टेटमेंट का ऑटो रिकंसिलेशन करना चाहते हैं तो आप आपके बैंक लेजर को तदनुसार कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और नए और इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट के लिए पाथ निर्धारित कर सकते हैं. सेट द इफेक्टिव डेट फॉर ऑटो रिकंसिलेशन. टैली प्राइम allow you to set an effective date for your bank reconciliation. The effective date is generally the book beginning from date, will means that the auto reconciliation can start from the book beginning from date. However, you can also change the date as per your requirements. टैली प्राइम में आपके बैंक रिकंसिलेशन के लिए इफेक्टिव डेट का ऑप्शन दिया गया है. आप इफेक्टिव डेट आपके हिसाब से चेंज कर सकते हैं. वहां पे बुक बिगिनिंग जो डेट है वही आ जाती है, तो आपके हिसाब से चेंज कर सकते हैं. व्यू एंड कॉन्फ़िगर बैंक रिकंसिलेशन. आफ्टर यू import the bank statement, the entries are auto reconciliation. You can see the bank date column updated with the bank date when the transactions are cleared in the bank. You can also view the reconciliation screen by including the reconciliation transaction or view or the debit or credit entries
from the reconciliation screen of one bank, you can go to another bank reconciliation screen. Additionally, you can configure the screen and add other details as per your requirement. आपके द्वारा बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करने के बाद एंट्री ऑटोमेटिक रिकंसाइल हो जाती है. आप जो रिकंसिलेशन का स्क्रीन है वहां से ही आपको अगर कोई कॉन्फ़िगर करना है तो वही स्क्रीन से आप कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं. और अगर आपको बैंक रिकंसिलेशन करने के लिए दूसरी बैंक ओपन करनी है तो आप वो भी वहां से वही स्क्रीन से कर सकते हैं. थैंक यू. Hello, Tarun. Yes, ma'am. Yeah, just share the screen. Yeah. My screen is visible? Yeah, it's visible. Yes, ma'am. So, good evening everyone. My name is Tarun and आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बैंक रिकंसिलेशन के रिगार्डिंग क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जिसको हम परफॉर्म कर सकते हैं, किन किन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए. तो बैंक रिकंसिलेशन के इस टॉपिक में आज हम देखने वाले हैं. तो सबसे पहले तो मैं बैंक का जो लेजर होगा आपका वो कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो आप कर सकते हैं, मैं वो बता देता हूँ. तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लेजर एक क्रिएट किया हुआ है. अगर आप नया लेजर भी क्रिएट करते हैं तो स्क्रीन तो वही रहने वाला है, कॉन्फ़िगरेशंस वही रहेंगी. तो जस्ट मैं इसको ऑल्टर करके आपको दिखा देता हूँ. तो ये कोटक महिंद्रा बैंक का एक लेजर बना रखा है जिसका ग्रुपिंग जो है अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट में रखा है हमने. एंड इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं आप एक ऑप्शन आता है इफेक्टिव डेट फॉर रिकंसिलेशन का. तो यही वो ऑप्शन है जिसके थ्रू क्या होता है कि जैसे आप रिकंसिलेशन करने जाएंगे तो उसमें जो इफेक्टिव डेट यहाँ पे डाला हुआ होगा उसके ऑनवर्ड्स ही आपको एंट्रीज देखने को मिलेंगी बैंक रिकंसिलेशन की रिपोर्ट पे. अगर सपोज करिए आपकी जो कंपनी है वो फाइनेंशियल ईयर 2023 से चलती आ रही है और जनरली लेजर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपनी का बुक्स बिगिनिंग डेट होता है तो वो यहाँ पर डला हुआ होगा. अगर F12 से मैं इस ऑप्शन को बंद कर देता हूँ, यहाँ पर F12 में अगर ये ऑप्शन ना दिखे आपको इफेक्टिव डेट फॉर रिकंसिलेशन का, तो यहाँ F12 के अंदर ये ऑप्शन दिया हुआ है बैंक डिटेल्स में. फर्स्ट ऑप्शन प्रोवाइड इफेक्टिव डेट ऑफ बैंक रिकंसिलेशन फॉर बैंक लेजर्स. इस ऑप्शन को अगर सपोज करिए ये पहले नो ही था तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगी स्क्रीन. ठीक है, तो इसको जस्ट आप यहाँ से इनेबल कर लेंगे और अपना ऑटो ये रिकंसिलेशन का जो इफेक्टिव डेट है वो यहाँ से अपने अकॉर्डिंग चेंज कर भी सकते हैं. तो मैंने यहाँ फिलहाल के लिए 1 जनवरी से मुझे रिकंसाइल करना है तो मैंने 1 जनवरी 2024 डाल दिया है. ठीक है, अब यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम आता है तो कंपनी का नाम यहाँ पर आ जाएगा या पर्सन का नाम भी हो सकता है. देन अकाउंट नंबर आ जाएगा आपका, IFSC कोड आ जाएगा आपका. ये करेक्ट होना चाहिए क्योंकि अगर इनकरेक्ट होगा तो उसमें पॉपअप आ जाएगा यहाँ पे टैली पे लिखा हुआ और बोलेगा कि ये इनकरेक्ट डाला है आपने. देखिए मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ. इसमें सपोज करिए लास्ट में से मैंने ये नहीं, एक मिनट, फॉर्मेट जैसे है अकाउंट नंबर वैसे तो डिजिट में, हाँ ठीक है. तो फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है दोनों चीज़ों का, इसका अकाउंट नंबर का भी और इसका IFSC कोड का भी. इसके बाद स्विफ्ट कोड जो है वो भी आपको अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं और अगर नहीं डालना है तो कोई मैंडेटरी नहीं है. देन यहाँ पर बैंक नेम ज़रूर आपका सेलेक्टेड होना चाहिए अगर आपको ऑटो रिकंसिलेशन करना है. तो अगर आपने बैंक का नाम सेलेक्ट नहीं किया है तो आप ऑटो रिकंसिलेशन नहीं कर पाएंगे. और एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि अगर बैंक नेम में अगर आपका लिस्ट ऑफ बैंक्स अगर विजिबल नहीं है, ये जैसे राइट हैंड साइड में स्क्रीन खुली है सारे बैंक्स के नाम आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपका जो टैली है वो एजुकेशन मोड पे है. तो ये भी एक चीज़ है, अगर टैली आपका लाइसेंस मोड पे रहेगा तो ही आपको लिस्ट ऑफ बैंक्स देखने को मिलेगा. एंड इसके बाद यहाँ पे आपको बैंक का नाम जो भी रहेगा वो लिस्ट में से सेलेक्ट करना है. ब्रांच आपको डाल देना है, ब्रांच का नेम. इसके बाद BSR कोड,
ये BSR कोड भी अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, कोई क्लाइंट कोड है तो वो भी डाल सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे तो बैंक कॉन्फ़िगरेशन में सेट ऑल्टर रेंज फॉर चेक, अगर आप चेक बुक प्रिपेयर करना चाहते हैं तो टैली में वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको यस करके, जैसे चेक नंबर्स होते हैं आपके तो वो आप यहाँ डाल देंगे। ये डालने के बाद अगर सपोज करिए मैंने 50 डाला तो ये चेक बुक जो होगी वो कुछ इस तरीके से प्रिपेयर हम कर सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर आता है इनेबल चेक प्रिंटिंग। तो चेक प्रिंटिंग अगर हमें टैली से करना है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी आप कर सकते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट्स होते हैं वो सारे यहाँ पर प्रेफर्ड दिए हुए होते हैं ऑलरेडी। तो जो भी आपको सेलेक्ट करना है आप वो सेलेक्ट करके और डायरेक्टली टैली से अगर लेना है चेक पे प्रिंट तो वो भी कर सकते हैं आप अपने फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग। देन इसके बाद यहाँ पर आता है इनेबल ऑटो रिकन्सिलेशन। इस ऑप्शन को आप यस कर लेंगे अगर आपको बैंक स्टेटमेंट जो आप बैंक पोर्टल से डाउनलोड करने वाले हैं उसको अगर आप टैली में डायरेक्टली इंपोर्ट करके फिर अगर रिको करेंगे तो वो रिकनसाइल करने के लिए ये ऑप्शन यस होना चाहिए बैंक के लेजर में। ठीक है, तो इसको हमने यस कर लिया। देन अगर कुछ जैसे आपको क्या होता है कि अगर स्टेटमेंट जो है हर बार अगर आप किसी स्पेसिफिक प्लेस पे ही डाउनलोड करते हैं और वहीं से आपको डायरेक्टली डालना है टैली में, और ये काम आपको बार बार ना करना पड़े, उसकी लोकेशन बार बार आपको स्पेसिफाई ना करना पड़े, इसके लिए यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है कि आप डायरेक्टली जो फाइल आप डाउनलोड करेंगे उसकी लोकेशन यहाँ स्पेसिफाई कर देंगे। तो फोल्डर पाथ आ रहा है यहाँ पे न्यू बैंक स्टेटमेंट के लिए, इंपोर्टेड बैंक स्टेटमेंट के लिए, तो ये दोनों प्लेस आप डाल सकते हैं। इसके बाद ई पेमेंट्स वगैरह जो रहेगा आपका जो बैंक के थ्रू करवाया जाता है तो वो चीज़ें वो एक्टिविटी भी आप इसमें कर सकते हैं। देन यहाँ पर अगर आपको इधर मेलिंग डिटेल्स में अगर आप बात करें तो इसमें भी वैसे डालने की नीड तो नहीं है, और अगर आपको एड्रेस वगैरह लिखना है तो आप पूरी डिटेल डाल सकते हैं कुछ। देन इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये बैंक का लेजर हो गया आपका। अब इसके बाद इसकी जो एक्टिविटी रहेगी आपकी रिकन्सिलेशन रिपोर्ट पे उसको देख लेते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली पे ही यूटिलिटीज़ के अंदर आपको बैंकिंग का ऑप्शन मिलता है। बैंकिंग में जाएंगे, बैंकिंग में जाने पर ये पूरी स्क्रीन पे आपको 5-6 ऑप्शंस मिलेंगे जो बैंक से रिलेटेड है स्पेशली। तो चेक प्रिंटिंग एक हो गया आपका, चेक प्रिंटिंग से जो भी रहेगा आपका तो वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। जो जैसे कोटक महिंद्रा बैंक आ गया, अपना डेट यहाँ पर पर्टिकुलर्स आ रहा है। अब यहाँ ऊपर देख रहे हैं आप लिखा हुआ बैंक नॉट कॉन्फ़िगर्ड फॉर चेक प्रिंटिंग, तो अभी मैंने सेटअप नहीं किया हुआ है, लेकिन अगर मैं सेटअप करके रखूंगा चेक प्रिंटिंग के लिए तो वो भी स्टार्टअप हो जाता है इसमें से। तो यहाँ डायरेक्टली यहाँ से भी आप प्रिंट ले सकते हैं, प्रिंट भी ले सकते हैं। यहाँ पर राइट हैंड साइड में ऑल्ट्रेशन के भी दिए हुए ऑप्शन कि चेक वगैरह अगर आपको ऑल्टर करना है तो वो भी कर सकते हैं, या इंस्ट्रूमेंट नंबर कुछ भी डिटेल्स अप एंड डाउन करनी है आपको तो यहाँ से कर सकते हैं। चेक रजिस्टर आपका यहाँ से प्रिपेयर हो जाता है, जैसे ये अवेलेबल चेक्स 50, अनरिकनसाइल्ड, रिकनसाइल्ड, बैंक कैंसल्ड, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, आउट ऑफ पीरियड, इस तरीके से। ये देखिए जितने भी चेक्स के थ्रू पेमेंट्स हुई हैं सारी आपकी वो स्टेटमेंट दिखा रहा है, ये नॉट एनरिच ये पहले की है, और जो अभी हमने न्यू बनाया था वो ये वाला है। तो ये चेक रजिस्टर जो है वो भी आप प्रॉपर वे में मेंटेन कर सकते हैं इसमें। पोस्ट डेटेड समरीज भी आती हैं, पोस्ट डेटेड अगर आपने एंट्रीज कुछ करी हुई होंगी तो वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं आप, जैसे आपने वाउचर में एंट्री करते टाइम पे देखा होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक कोई पेमेंट की एंट्री ले लेते हैं, कोई भी पेमेंट की एंट्री लीजिए। यहाँ राइट हैंड साइड में पोस्ट डेटेड का एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो अगर आप आगे की फ्यूचर डेट पे अगर कोई एंट्री करते हैं कि ये एंट्री आगे की डेट पे रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, अभी इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है या आगे ही रिसीव होगा या पे होगा, तो वो चीज़ें हैं, तो उसके लिए आप पोस्ट डेटेड भी कर सकते हैं एंट्रीज। तो जो पोस्ट डेटेड एंट्रीज होंगी आपकी वो इसके अंदर रिकॉर्ड होंगी पोस्ट डेटेड समरी में, अगर वो बैंक से रिलेटेड है तो। देन स्टेटमेंट के अंदर आपका डिपॉजिट स्लिप, पेमेंट एडवाइस, तो ये सारी चीज़ें भी हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे कोई भी पार्टी है आपकी तो उनका अगर आपको पेमेंट एडवाइस बनाना है तो पेमेंट एडवाइस आप बना सकते हैं। इसमें तो
एंट्रीज नहीं है यहाँ पर। एंड यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आता है बैंक रिकंसिलेशन का। तो बैंक रिकंसिलेशन मेन है आपका। इस पे अगर आप जाएंगे तो बैंक का नाम जैसे हमने ले लिया, कोटक महिंद्रा बैंक सेलेक्ट कर दिया। पीरियड आपको, जो पीरियड आपका रहेगा, जैसे आपने देखा होगा बैंक के लेटर में इफेक्टिव डेट जो डाला हुआ है रिकंसिलेशन का, वो हमने 1 जनवरी से डाला है। तो यहाँ पर 1 जनवरी से दिख रही है हमें एंट्रीज। ठीक है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, जो भी 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम जाते हैं, पीरियड सेलेक्ट कर लिया हमने। तो पीरियड हमें सिलेक्ट करना है सबसे पहले, ये मैं जनवरी का ले लेता हूँ। तो जनवरी का पीरियड हमने सेलेक्ट किया, राइट। अब इसके बाद जब आप बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट बेसिकली आपको ऑल्ट ओ करके और यहाँ बैंक स्टेटमेंट में जाके और इस तरीके से इंपोर्ट करना है आपको। यहाँ पर जो फॉर्मेट्स आपको देखने मिलेंगे वो फाइल टाइप कुछ इस टाइप से है, जैसे CSV रहेगा आपका, एक्सेल रहेगा, और ये MT 940 ये भी फॉर्मेट है, बट मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इसमें ही करें, एक्सेल में ज़्यादा बेटर रहेगा। देन इसके बाद जब आप यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे फाइल को, तो वो इंपोर्ट होने के बाद जितनी भी एंट्रीज हैं जो रिकनसाइल हो गई हैं, तो उसमें बैंक डेट जो है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। अब जैसे हमने रिको ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसको हम इसमें जाकर के देख सकते हैं। बेसिस ऑफ वैल्यू में जाएंगे और इंक्लूड रिकनसाइल ट्रांजेक्शंस को अगर मैं यस करूं, अभी इस पीरियड के अंदर कोई भी एंट्रीज रिकनसाइल नहीं है। अभी अगर मैं आपको प्रीवियस पीरियड का दिखाता हूं, तो जितनी भी एंट्रीज आपकी रिकनसाइल हो रखी होंगी, इसको मैं 23 कर देता हूँ सपोज करिए। अब यहाँ पर जो एंट्रीज आ रही है वो अप्रैल 23 से दिखा रहा है। अब मैं आपको कंट्रोल बी करके इंक्लूड रिकनसाइल ट्रांजेक्शंस, इसको अगर हम यस कर लेते हैं तो हमारी जितनी भी एंट्रीज रिको हो चुकी है वो सारी एंट्रीज यहाँ पर आ जाएंगी। तो अभी देखिए इस पीरियड में रिको एक्चुअली किया नहीं है। तो बैंक स्टेटमेंट जब आप प्रिपेयर करेंगे और इंपोर्ट कर लेंगे, तो उसके अंदर आपका जितनी भी एंट्रीज होंगी जो रिकनसाइल हो रही होंगी, उनके सबके आगे इंस्ट्रूमेंट डेट तो आ ही रहा है, बैंक डेट भी डल के आ जाएगा। दैट मीन्स कि वो रिकनसाइल हो गई है। ठीक है। एंड अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में और भी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे बेसिस ऑफ वैल्यूज़ में अगर आपको ये देखना है कि जो पीरियड आपने सेलेक्ट किया है उसमें कौन कौन सी ऐसी एंट्रीज है जो अनरिकनसाइल्ड है, वो टिल डेट तक में, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है थर्ड वाला, इंक्लूड ऑल अनरिकनसाइल्ड ट्रांजेक्शंस टिल डेट। तो इसको आप यस कर लेंगे तो सारी एंट्रीज आपको दिखाएगा जो अनरिकनसाइल्ड है आज तक की डेट में। देन इसके नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं तो इंक्लूड अनलिंक्ड ट्रांजेक्शंस है। तो कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो लिंक नहीं होती। लिंक का मतलब कि वो ऐसी एंट्रीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपकी इसके अंदर है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है, जो बैंक स्टेटमेंट में नहीं है। ठीक है, तो ऐसी एंट्रीज भी आपको देखने मिलेंगी, और कुछ ऐसी एंट्रीज भी होंगी जो सिर्फ आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है बट वो बैंक स्टेटमेंट में होगी। ठीक है, तो वो अनलिंक्ड ट्रांजेक्शन्स होती है, अनलिंक्ड। और ऐसी कोई ट्रांजेक्शन अगर होती है जिसमें माइनर सा कुछ डिफरेंस आ रहा है, या जैसे पॉइंट में डिफरेंसेस आते हैं कई बार, तो वो पॉइंट के डिफरेंसेस को हम मैन्युअली चेंज करके और यहाँ राइट हैंड साइड से उसको लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन रिकनसाइल अनलिंक्ड, तो ऑल्ट क्यू करके आप इस चीज़ को कर सकते हैं। और अगर ऐसी काफ़ी सारी एंट्रीज हैं, क्योंकि बहुत रेयर केस ऐसा होता है कि जब आपने बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट कर लिया और इंपोर्ट करने के बावजूद भी कुछ एंट्रीज ऐसी रह जाती हैं स्पेसिफिकली कि वो लिंक नहीं होती है, तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है रिकनसाइल ऑल अनलिंक्ड ट्रांजेक्शंस। तो ये वो भी कर सकते हैं आप ऑल्ट आर करके, तो जितनी भी अनलिंक्ड ट्रांजेक्शंस होगी वो सारी रिकनसाइल हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। देन यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है सेट बैंक डेट का। तो बैंक डेट अगर आपको जो भी पीरियड आपने सेलेक्ट किया है, अगर उसमें वन गो में ही बैंक डेट डालना है,
तो वो आप डाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर डाल देंगे तो वो सभी एंट्रीज में ही वो ही डेट आ जाएगी डल करके। तो ये बेसिकली तब किया जाता है जब आपका, जैसे आपने पीरियड सेलेक्ट किया 1 वीक का। अब 1 वीक में आपको पता है कि ये सारी एंट्रीज जो है वो किसी एक डे पे ही रिफ्लेक्ट हुई हैं अकाउंट्स में। तो आप क्या करेंगे, जितनी भी स्क्रीन पे एंट्रीज होंगी तो उनको वन गो में ही रिकनसाइल करने के लिए यहाँ पर सेट बैंक डेट डाल करके कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर बाय मिस्टेकली कोई आपने ऐसी एंट्री है जिसको जो अनलिंक थी, या जिसको आपने रिकनसाइल किया है और बाद में उसको आपने अनलिंक करा है रीजन से, और वो एंट्री आपको हटानी है, तो उसके लिए यहाँ से डिलीट अनलिंक का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो डिलीट वन करके भी कर सकते हैं अगर सिंगल सिंगल करना है, और अगर वन गो में मल्टीपल एंट्रीज डिलीट करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे तो फिगर्स की अगर मैं बात करूँ तो फिगर्स जो है आपका ये कुछ इस तरीके से आएगा, जैसे बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स आता है जो आपकी टैली में है। तो जितनी भी अमाउंट आपकी यहाँ पर आएगी वही अमाउंट मैच होनी चाहिए एज पर बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, फिर अमाउंट नॉट रिफ्लेक्ट इन बैंक, अगर कोई ऐसी फिगर होगी जो आपकी बैंक में रिफ्लेक्ट नहीं हुई है तो वो यहाँ पर आ जाएगी। अमाउंट नॉट रिफ्लेक्ट इन कंपनी बुक्स, तो कंपनी बुक्स में अगर बैंक स्टेटमेंट आपने इंपोर्ट कर लिया बट वो कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जो आपकी बुक्स में नहीं है, तो वो एंट्रीज आपको कहाँ दिखेगी, उसकी फिगर अमाउंट नॉट रिफ्लेक्ट इन कंपनी बुक्स में दिखेगी। ठीक है, और जो बैंक स्टेटमेंट रहेगा आपका उसकी जो फिगर दिखेगी बैलेंस एज पर बैंक इसमें दिखेगी। एंड जो भी डिफरेंस फिगर रहेगा आपका तो वो डिफरेंस फिगर लास्ट वाले ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इस स्क्रीन पर अगर आप F12 में देखेंगे तो F12 में कुछ और एक्टिविटीज दी हैं, जैसे कि नरेशन का ऑप्शन दिया है, फेवरिंग नेम का ऑप्शन दिया है। तो आप इन ऑप्शंस को भी यूज कर सकते हैं अगर आप ये चीजें प्रिपेयर करते हैं तो। जैसे आपने फेवरिंग नेम डाला हो या आपने रिमार्क्स में अगर कुछ फिल किया है या फॉरेक्स ट्रांजेक्शन है आपकी, तो ये सारी चीज़ें आप यस कर लेंगे तो वो चीज़ें भी आपको स्क्रीन पर देखने मिलेंगी। तो that's it from my side, and thanks for joining this session. Thank you so much, both of you, for your presentation. So, regarding to the today's session, if anyone has any queries, kindly connect with your key account manager for the further more details. So now we'll just wind up the session, but before that, this session will be uploaded in the YouTube channel. So be connected to our social media. Thank you everyone for joining today's session.